آپ سب کو پاسٹر ڈینیل جان ان کی فیملی کی طرف سے پام سنڈے بہت زیادہ مبارک ہو. اور جو زندگیاں آج پہلی مرتبہ آئی ہیں ہم ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں, ہم ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں جو آج پہلی مرتبہ آئی ہیں. اور آج پام سنڈے ہے اور خدا کے کلام کی طرف چلیں گے. اس سے پہلے کہ ہم خدا کے کلام کو سنیں, اس بات کو غور سے سنیں, یاد رکھیں کہ خدا کا خادم جب کوئی انسٹرکشن دیتا ہے, جب کوئی گائیڈنس دیتا ہے, جب کوئی ایک طرح سے بات سکھاتا ہے تو اس کو اس طرح سے فالو کرنا یہ ہمارے لیے بڑا ضروری ہے. بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں ہم اپنے خادم کو, اپنے پاسٹر کو ویلیو نہیں دیتے. مثال کے طور پر خدا کا خادم کہہ رہا ہے آپ نے روزہ رکھنا ہے اور آپ روزہ نہیں رکھ رہے, تو جو برکت آپ کو ملنی ہے آنے والے وقت میں آپ وہ برکت لوز کر دیں گے. مثال کے طور پر خدا کا خادم کہہ رہا ہے آپ نے جو اپنا بیسٹ سیڈ ہے اور جو دے یکیا اس کو مکس نہیں کرنا ہے. آپ نے دے یکی جو منتھلی دے رہے ہیں وہ دینی ہے, اور جو اسپیشل سیڈ بو رہے ہیں جو آپ کے لیے اسپیشل ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی مجھے اسپیشل چیز دے, اور اگر آپ یہ سوچتے ہیں, آپ یہ ڈیمانڈ کرتے, آپ یہ توقع رکھتے ہیں کہ کوئی میرے لیے اسپیشل کرے, تو اتنا ہی آپ نے اس کے لیے بھی کرنا ہے. اور جب آپ اسپیشل سیڈ اور ٹائٹ میں فرق کریں گے اور یہ دونوں چیزیں خدا کے خادم کے کہنے پر خدا کے کلام کو فالو کرتے ہوئے آپ اس پر عمل کریں گے تو آپ کے لیے آنے والے وقت میں برکتوں کے دروازے کھلیں گے. اور اگر آپ ایسا نہیں کرتے ہیں, آپ ٹائٹ نہیں دیتے, اسپیشل سیڈ دے دیتے ہیں, آپ اسپیشل سیڈ نہیں دیتے, ٹائٹ دے دیتے ہیں, تو جو آنے والے وقت میں برکتیں ہیں وہ آپ کے لیے رک سکتی ہیں, خدا ان کو روک سکتا ہے. اس لیے ان باتوں کو فالو کرنا بڑا ضروری ہے, کیونکہ خدا کا خادم اگر دن رات دعا میں ہے, اسے پاک روح کی طرف سے رہنمائی مل رہی ہے کہ یہ بات سکھانی ہے, اور آپ نہ سیکھیں, آپ عمل نہ کریں, تو آپ کے لیے آنے والے وقت میں برکتوں کے دروازے بند ہو سکتے ہیں. ہیلیلویا. اگر چاہتے ہیں کہ برکتوں کے دروازے کھلے رہیں تو پھر فالو کرنا, انسٹرکشنز کو ماننا یہ بڑا ہی ضروری ہے. ایک بھائی گزشتہ دنوں کے اندر, پچھلا سال ان کا بڑا خراب گزرا, اس طرح سے وہ کاروبار ان کے لیے وہ نہیں تھا, لیکن ان کے دل میں آیا کہ وہ چرچ کا پینٹ کر سکیں, اپنا پیسہ خرچ کر سکیں, اپنی انرجی, اپنی طاقت اور اپنا ٹائم چرچ میں سپینڈ کر سکیں. اور جب انہوں نے ایسا کیا تو فائنینشلی کثرت سے خدا نے ان کو برکت دی. ان کے گھر کے میٹر نہیں تھے اویلیبل, خدا نے بجلی کے میٹر اویلیبل کیے, کاروبار خدا نے مہیا کیا, اور ایک ٹائم بھی ایسا نہیں آیا کہ جس میں ان کی چھٹی ہوئی ہو. خدا نے ان کو کثرت سے استعمال کیا, برکت دی. ہاللیلویا. لیکن کیسے؟ جب آپ خدا کے لیے اویلیبل ہوتے ہیں, جب آپ خدا کے لیے اپنا دل کھولتے ہیں, جب آپ خدا کے لیے ایفرٹ کرتے ہیں, اپنی انرجی, اپنی طاقت, اپنا ٹائم خدا کے لیے آپ وقف کرتے ہیں, پھر خدا آپ کے لیے دروازے کھولتا ہے. ہاللیلویا. اور صرف یہی نہیں کہ ٹائٹ دے دی ہے تو پھر چرچ نہیں, دعا نہیں, خدا پہ بڑا ہم نے احسان کر دیا, نہیں. آپ نے سب کچھ, آپ نے خدا کی حضوری میں دعا بھی کرنی ہے, آپ نے پرستش بھی کرنی ہے, آپ نے چرچ بھی آنا ہے, اور آپ نے جو انسٹرکشنز ہیں, جو بائبل مقدس کے اندر پرنسپلز ہیں, ان کو بھی فالو کرتے جانا ہے. ہاللیلویا. پھر ہی ہمارے لیے برکتوں کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے. ہم بہنوں کے لیے شکر گزار ہیں. چند ایک بہنوں نے, مجھے اس بات کا بالکل علم نہیں تھا, انہوں نے خود سے جو ہے وہ پیسے جمع کر کے اور وہ چرچ کے لیے ایک بڑا کولر جو ہے وہ لے کر آئے. آئیے ان بہنوں کے لیے زوردار تالیاں بجائیں. اور ہمیشہ چرچز کو اگر کسی نے اسٹیبلش کیا ہے تو وہ بہنیں ہیں. چرچ کنسٹرکشن کے حوالے سے, چرچ کو تعمیر کرنے کے حوالے سے, اور چرچ کو گرو کرنے کے حوالے سے, ہر طرح سے بہنیں وزٹ کرتی ہیں, بہنیں چندہ اکٹھا کرتی ہیں, بہنیں دعائیہ باتوں میں شامل ہوتی ہیں, اور جب وہ نکلتی ہیں تو پھر خدا بڑے بڑے کام کرتا ہے. اور جب ہم یہاں پر آئے, بہت سے لوگوں نے ہم سے کہا کہ پائی صاحب آپ سنڈے کو وزٹ نہیں کرتے, صبح صبح نکلا کریں, وزٹ کیا کریں. تو میں نے کہا بھائی ہم آلریڈی منڈے سے سیٹرڈے تک وزٹ کرتے ہیں, تو جنہوں نے آنا ہے انہوں نے آنا ہی آنا ہے چرچ میں, اور جنہوں نے نہیں آنا چاہے سنڈے کو صبح صبح بھی گھر کے دروازے نوک کریں جا کر, انہوں نے بھی نہیں آنا. اور بہت مرتبہ
बहनें इस इंतज़ार में होती हैं कि हमें घर से कोई लेकर जाए। बाज़ औक़ात हमारे लीडर जो हैं वो इस तरह से करते हैं, बहनें बर्तन धो रही हैं, नहीं मैं भांडे धोंदियां तुसी चर्च चलो, नहीं मैं कपड़े धोंदियां तुसी मैं हांडी बना देनी, मैं मटर कट देनी, तुसी चर्च चलो। नहीं, क्या हम इसी बात पर लगे रहें? जब चर्च से ये अनाउंस कर दिया है कि बहनों की इबादत होगी तो फिर इस बात को फॉलो करें। हम कब बड़े होंगे, कब बालिग होंगे? क्या दूध पीते बच्चे ही रहना है? चर्च पे जब हमने अनाउंस किया है, यहां पर हमने अनाउंसमेंट कर दी है, तो फिर आपने इस बात को फॉलो करना है। और बहुत मर्तबा हम ये समझते हैं कि जी फलां खुदा का खादिम जो है, फलां खुदा का बंदा आज वो अमेरिका में बैठा है, आज वो फलां जगह पर बैठा हुआ है, तो हर किसी के लिए खुदा की बाहर कॉलिंग नहीं होती है कि हर कोई मुझे कोई। एक मुस्लिम भाई यहां पर रेगुलर आ रहे हैं, वो दुआ करवा रहे हैं कि दुबई का वीजा लगे उनका। तो मैंने उनसे कहा कि भाई आप अपने बीवी बच्चों के पास रहें। भैन इधर मेरे लिए देखो, क्यों है इधर देखो। तो मैंने उनसे कहा कि आप अपने बीवी बच्चों के पास रहें, हम आपके लिए दुआ करते हैं, खुदा पाकिस्तान के अंदर आपके लिए दुबई बना देगा, तो जरूरी है आपने बच्चों से बाहर। तो कहते नहीं इधर कारोबार नहीं है, मैंने जाना है, मेरा शौक है, ये है वो है। तो मैंने कहा भाई मुझे मुफ्त में कोई, हमारे लिए जाना मुश्किल नहीं है, अगर मुफ्त में मुझे कोई बाहर का, अमेरिका का, कनाडा का वीजा दे तो मैं कभी भी ना जाऊं, क्योंकि मेरे लोग यहां पर, खुदा ने पाकिस्तान के अंदर रखा, मसीही कौम यहां पर, हमारे बहन भाई यहां पर हैं, मेरी कॉलिंग यहां पर, मेरा बुलावा यहां पर, खिदमत यहां पर। अगर मुफ्त में भी कुछ मुझे बाहर लेकर जाए तो मैं कभी भी ना जाऊं, क्योंकि मुझे शौक ही नहीं है। यहां पर खुदा ने रखा है, यहां पर खुदा ने खिदमत दी है, हमने यहीं पर बैठकर सोशल मीडिया के जरिए से पूरी दुनिया तक हम पहुंच सकते हैं। हालेलुया। ये जो मैसेज रिकॉर्ड हो रहा है अभी हजारों तक जा रहा है, लोगों को, हजारों लोग सुन रहे हैं, और आने वाले वक्त में लाखों लोग भी सुनेंगे, करोड़ों लोग भी सुनेंगे, अरबों लोग भी सुनेंगे, और खुदा के नाम को इज्जत और जलाल मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए पाकरू के लिए जोरदार तालियां बजाएं, जोरदार तालियां। ओ फाड़ लो। खुदा के कलाम की तरफ चलेंगे। मेरे साथ निकालिए मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान, उसका 21वां बाब, उसकी 4थी आयत से लेकर 10वीं आयत तक। खुदा के कलाम में लिखा है, यह इसलिए हुआ कि जो नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो कि सिय्योन की बेटी से कहो कि देख मेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो हलीम है और गधे पर सवार है, बल्कि लादू के बच्चे पर। बस शागिर्दों ने जाकर जैसा यीशु ने उनको हुक्म दिया था वैसा ही किया, और गधी और बच्चे को लाकर अपने कपड़े उन पर डाले, और वो उन पर बैठ गया। और भीड़ में के अक्सर लोगों ने अपने कपड़े रास्ते में बिछाए, और औरों ने दरख्तों से डालियां काट कर राह में फैलाई। और भीड़ जो उसके आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, इब्ने दाऊद को होशना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है, आलम बाला पर होशना। जब वो यरूशलेम में दाखिल हुआ तो सारे शहर में हलचल पड़ गई, और लोग कहने लगे ये कौन है। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने से हम सबको बरकत मिले, आमीन। ज़िकरिया नबी का सहीफा, उसका 9वां बाब, उसकी 9वीं आयत। ए बिनते सिय्योन, तू नहायत शादमान हो, ए दुख्तरे यरूशलेम खूब ललकार, क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो सादिक है और नजात उसके हाथ में है, वो हलीम है और गधे पर, बल्कि जवान गधे पर सवार है। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने से हम सबको बरकत मिले, आमीन। विलियम बार्कले एक ज़बरदस्त बाइबल स्कॉलर्स हुए हैं, और वो बताते हैं कि ईद फसा के मौका पर
पूरी दुनिया से ऑलमोस्ट 20 लाख के करीब यहूदी लोग मौजूद थे और खुदावंद यीशु मसीह पहली मर्तबा बतौर बादशाह यरूशलेम में दाखिल हुए। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने आप को दुनिया पर नबी के तौर पर जाहिर किया, अच्छे चरवाहे के तौर पर जाहिर किया, शाफी के तौर पर जाहिर किया, लेकिन बादशाह के तौर पर कभी जाहिर नहीं किया था। लेकिन खास ईद फसा के मौका पर खुदावंद यीशु मसीह ने अपने आप को बादशाहों के बादशाह यीशु बादशाह के तौर पर यीशु मसीह ने जाहिर किया। हालेलुया। यरूशलेम शहर के अंदर उसके इर्द गिर्द 12 दरवाजे थे और खुदावंद यीशु मसीह जिस दरवाजे से दाखिल हुए वो मशरिकी दरवाजा था। और उसी टाइम पर, उसी इवेंट के मौका पर, उसी दिन, उन्हीं लम्हात पर जो पिलातुस गवर्नर था, पिलातुस रोमियो का बादशाह था, वो मगरबी दरवाजे से उसी टाइम पर दाखिल हो रहा था। खुदावंद यीशु मसीह कहां से दाखिल हो रहे हैं? यरूशलेम शहर के अंदर मशरिक वाली साइड से। जहां से सूरज निकलता है वो मशरिक साइड है और जहां पर गरूब होता है वो मगरिबी साइड है। एक तरफ से यीशु मसीह मशरिकी दरवाजे से यरूशलेम शहर में दाखिल हो रहे हैं और दूसरी तरफ से जो पिलातुस बादशाह है, गवर्नर है, हाकिम है, वो यरूशलेम शहर के अंदर दाखिल हो रहा है। और अगर आप यीशु मसीह की एंट्री को देखें, खुदावंद यीशु मसीह कैसे दाखिल हो रहे हैं, लोग नारे मार रहे हैं, लोग इब्ने दाऊद होशना पुकार रहे हैं, उनके हाथों में डालियां हैं और यीशु मसीह घोड़े पर नहीं बल्कि गधे पर सवार है। जो कोई घोड़े पर सवार होता है, इसका क्या मतलब है? वो जंग करने के लिए आ रहा है, वो जंग की पेशकश कर रहा है। लेकिन अगर कोई गधे पर सवार है, इसका मतलब है कि वो सुलह करने के लिए या सुलह का पैगाम देने के लिए वो आ रहा है। और अगर पिलातुस को आप देखें, पिलातुस हैकल यरूशलेम के अंदर कैसे दाखिल हो रहा है? बहुत से कदमों की, जोरदार कदमों की आवाज है, फौज उसके इर्द गिर्द है, तलवारें हैं, भाले हैं और हेलमेट्स हैं और उनके कदमों की गूंज है और एक स्पेशल फोर्स है, एक स्पेशल आर्मी है जिसके साथ पिलातुस जो है वो उस यरूशलेम शहर के अंदर दाखिल हो रहा है। लोग सोच रहे थे कि शायद उस वक्त के जमाने में लोग ये सोच रहे थे कि शायद खुदावंद यीशु मसीह हमें रोमी हुकूमत से निजात देने के लिए आ रहे हैं, हमें रोमी हुकूमत से रिहाई देने के लिए आ रहे हैं। और लोग इसीलिए नारे मार रहे थे, इब्ने दाऊद को होशना, वो होशना के नारे मार रहे थे। और होशना का क्या मतलब है? हमें बचा, हमें नजात दे, हमें मखलसी दे, हमें छुटकारा दे, हमें रिहाई दे। लोगों के माइंड के अंदर यह था कि शायद खुदावंद यीशु मसीह बतौर बादशाह इसलिए यरूशलेम में दाखिल हो रहे हैं कि वो रोमियों से जंग करेंगे, पिलातुस से जंग करेंगे और हम यहूदियों को वो उनकी गुलामी में से आजाद कर देंगे। तकरीबन रोमियों ने 80 साल यहूदियों के ऊपर, यरूशलेम शहर के ऊपर हुकूमत की। लेकिन याद रखिए, खुदावंद यीशु मसीह का फोकस, खुदावंद यीशु मसीह का प्लान, खुदावंद यीशु मसीह का मंसूबा लोगों को रोमी हुकूमत से आजाद करना नहीं बल्कि बीमारियों से आजाद करना था, बल्कि गुनाह की गुलामी से आजाद करना था, इब्लीस के बंधनों को तोड़ना था, इब्लीस के जुओं को तोड़ना था। यीशु मसीह का हकीकी मकसद इब्लीस की गुलामी से आजाद करवाने का था। हालेलुया। यीशु मसीह का क्या मकसद था भाइयों? इब्लीस की गुलामी से आजाद करवाना। मसीह यीशु की सल्तनत इस दुनिया की सल्तनत नहीं बल्कि आसमान की सल्तनत थी। आसमान की बादशाही को जमीन पर लाना, यह खुदावंद यीशु मसीह का प्लान था। और यीशु मसीह अपनी कौम के लिए, दुनिया के लिए पैगाम ये लेकर पैगाम वो आए कि वो जंग करने नहीं आ रहे बल्कि सुलह करने के लिए आ रहे हैं। और ये कहते आए कि आई एम द किंग। खुदावंद यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि मैं बादशाह हूं,
आई एम द किंग, मैं गुलाम बनाने नहीं आया बल्कि मैं आजाद करने आया हूं। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह आजादी देने के लिए आए। यीशु मसीह इब्लीस को यह पैगाम दे रहे थे कि जिस इंसान को बागे आदन से तूने गुलाम बनाया हुआ है, मैं उसे आजाद करवाने के लिए आया हूं। मैं सलीब के वसीले से गुलामी की तमाम जंजीरों को तोड़ने आया हूं। हालेलुया। और दूसरा बड़ा पैगाम जो खुदावंद यीशु मसीह ने उस वक्त की दुनिया को दिया, पूरी कायनात को दिया, वो ये कि मैं इस जमीन पर, इस दुनिया में बादशाही कायम करने नहीं आया बल्कि दिलों पर राज करने के लिए आया हूं। हालेलुया। यीशु मसीह दिलों को जीतने के लिए आया, दिलों के ऊपर सल्तनत करने के लिए वो आए हैं। यीशु मसीह मुल्कों को जीतने के लिए नहीं बल्कि दिलों को जीतने के लिए आए हैं। यीशु मसीह का ये पैगाम जब वो यरूशलेम शहर के अंदर दाखिल हो रहे हैं, और आज इस पाम संडे के दिन खुदावंद यीशु ने उन लोगों के सामने एक चॉइस रखी कि तुम्हारा बादशाह कौन है, कौन तुम्हारा बादशाह है। पिलातुस तुम्हारा बादशाह है या खुदावंद यीशु मसीह जो बादशाहों का बादशाह है, जो जिंदगी देता है, जो नजात देता है, जो बरकत देता है, जो शिफा देता है, जो ताजगी देता है, जो इत्मीनान देता है, जो रिहाई देता है, जो छुटकारा देता है, क्या वो तुम्हारा बादशाह है या पिलातुस तुम्हारा बादशाह है जो गुलाम बनाता है? और पिलातुस का बादशाह कौन था? इब्लीस उसका बादशाह था, जो गुनाह करवाता था, जो बदियां करवाता था, और जो तबाही और बर्बादी लेकर आता था, जो मौत लेकर आता था। जो कोई उसकी बात नहीं सुनता, उसकी बात नहीं मानता, उसकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करता, उनको कैद में डलवा देता, उनको कत्ल करवा देता था। क्या यीशु आपका बादशाह है या पिलातुस आपका बादशाह है? उस वक्त के लोगों को खुदावंद यीशु मसीह ने चूज करने का, चॉइस का फैसला दिया कि वो अपने लिए चूज कर लें, अपने लिए वो चुन लें कि वो किसको बादशाह बनाना चाहते हैं। एक साइड से यीशु मसीह दाखिल हो रहे हैं और उसी टाइम पर एक साइड से पिलातुस दाखिल हो रहा है, और ये भीड़ पर फैसला है, ये लोगों के ऊपर मुनहसर है कि वो यीशु की तरफ जाते हैं या वो पिलातुस की तरफ जाते हैं। वो खुदावंद यीशु को अपना मुक्तिदाता मानते हैं या वो पिलातुस के डर में उसके पीछे पीछे चलते हैं। और आज हमारे लिए भी ये पैगाम है। हर पाम संडे हमारे लिए ये पैगाम लेकर आता है कि आपका बादशाह कौन है। क्या यीशु आपका बादशाह है या पिलातुस आपका बादशाह है, या शैतान आपका मालिक है, या यीशु मसीह जिसने मेरे और आपके गुनाहों की खातिर सलीब पर कुर्बानी को गुजराना, मौत को उसने लिया और हमें बख्श दिया, हमें माफी अता की और हमारे गुनाहों को लेकर वो सलीब पर चढ़ गया। आज ये आपका फैसला है कि आप किसको चुनते हैं। यीशु मसीह अमन का शहजादा है, वो बादशाहों का बादशाह है। हालेलुया। आप दौलत के पीछे भाग रहे हैं, मर्तबे के पीछे भाग रहे हैं, अच्छी शोहरत, ऊंची शोहरत हासिल करने के लिए भाग रहे हैं, या बादशाहों के बादशाह यीशु के पीछे भाग रहे हैं। हो सकता है आपको दौलत मिल जाए, हो सकता है आपको शोहरत मिल जाए, आप बुलंदियों की ऊंचाई पर चले जाएं, लेकिन अगर इत्मीनान ही नहीं है, अगर जिंदगी नहीं है, यीशु मसीह ने कहा अगर इंसान सारी दुनिया हासिल करे लेकिन अपनी जान का नुकसान उठाए तो उसे क्या हासिल है? वो कुछ भी हासिल नहीं कर सकता, सब कुछ फजूल है, सब कुछ जाया है। हालेलुया। और आज हमारे लिए यह भी पैगाम है कि हमारे बदनों, हमारे जहनों, हमारे खानदानों का बादशाह कौन है। उस वक्त पिलातुस जब यरूशलेम शहर के अंदर दाखिल हो रहा था तो उसके पास बड़े जबरदस्त हथियार थे, तलवारें थी, हेलमेट्स थे और पता नहीं क्या कुछ था, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह के पास ऐसा कुछ भी नहीं था। उसके पास खजूर की डालियां, लोग अपने कपड़े बिछा रहे हैं, लोग होशना के नारे मार रहे हैं, वो डालियों को लहरा रहे हैं, दरख्तों से डालियां काट कर वो लहरा रहे हैं और खुदावंद यीशु मसीह
बादशाह होशना के नारे लगा रहे हैं। खुदावंद यीशु मसीह के पास कोई हथियार नहीं है, पिलातुस के पास जबरदस्त हथियार है, लेकिन यीशु मसीह के पास सिर्फ एक ही हथियार है, और वो कौन सा हथियार है? गुड फ्राइडे का हथियार। गुड फ्राइडे को खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर चढ़ गए, हमारे गुनाहों को अपने ऊपर लेकर, हमारे गुनाहों की सजा खुदावंद यीशु मसीह ने अपने ऊपर ली। यीशु मसीह के पास एक ही हथियार, और जो कोई भी खुदावंद यीशु मसीह की सलीब के नीचे आता है वो हमेशा के लिए उसका हो जाता है। वो जबरदस्ती, वो तलवार के जोर पर, वो डरा कर, वो धमका कर वो अपने पास नहीं खींचता है, बल्कि सलीब के जरिए से, हालेलुया, सलीब के पैगाम के जरिए से, ऐ मेरे बेटे मैंने तेरा फिदिया दिया है, ऐ मेरे बेटे मुझे तुझसे प्यार है, ऐ मेरे बेटे मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं। और सलीब का पैगाम क्या है कि खुदा इंसान बनकर इस दुनिया में आया और हमारे गुनाहों की सजा उसने सलीब पर गुजरानी, अपने ऊपर ले ली। हालेलुया, हालेलुया। पाम संडे का सिर्फ एक ही पैगाम नहीं है, बल्कि यह पैगाम भी है कि यीशु मसीह तमाम कायनात का बादशाह है। हालेलुया। और कलाम मुकद्दस के अंदर क्या लिखा है कि हर एक घुटना उसके आगे झुकेगा, हर एक जुबान इकरार करेगी कि यीशु ही खुदावंद है। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह ने संडे वाले दिन वो यरूशलेम शहर में दाखिल हुए। वो मंडे को भी हो सकते थे, वो ट्यूसडे को भी हो सकते थे, लेकिन संडे को ही क्यों वो यरूशलेम शहर में दाखिल हुए? क्यों संडे को वो यरूशलेम शहर में दाखिल हुए? क्योंकि संडे वाले दिन पिलातुस भी दाखिल हो रहा था, और खुदावंद यीशु मसीह ने लोगों को फैसला करने का मौका दिया कि वो अपना चुनाव करें। यीशु मसीह भी दाखिल हो रहे हैं, पिलातुस भी दाखिल हो रहा है, लोग किसकी तरफ जाते हैं? आज भी हमारे लिए फैसला है, हमारे लिए चुनाव करने का मौका है। हम अपने लिए क्या चुनते हैं? क्या उसकी इबादत, या घर में बैठकर हम मूवी देखें, या बिस्तर पर सोए रहें? क्या हम इबादत करते हैं? क्या हम प्रस्तश करते हैं? क्या हम यीशु बादशाह को जलाल देते हैं, या हम अपने बदनों से इबलीस को खुश करते हैं? हम अपने लिए क्या चुनते हैं, यह बड़ा जरूरी है। और पिलातुस ने उस वक्त भी, एक ख्याल के मुताबिक पिलातुस ने उस वक्त भी, सुने इधर देखें, पिलातुस ने उस वक्त अपनी आंखों से देखा। इधर मेरे लिए तवज्जो करो, कोई गल नहीं, उन्हें खलोते रहने दो या बह जाओ, सीढ़ियां च बह जाओ, पीछे बेंच है वहां पर चले जाए। इधर मेरी तरफ देखें। पिलातुस ने अपनी आंखों से देखा कि खुदावंद यीशु मसीह बतौर बादशाह वो यरूशलेम शहर में दाखिल हो रहे हैं। वो भी हाकिम है, पिलातुस भी बादशाह है, लेकिन अपनी आंखों से देख रहा है। इसलिए उसने सवाल किया यीशु मसीह से, क्या तू यहूदियों का बादशाह है? और यीशु मसीह का क्या जवाब था? तुम ही ये कहते हो, तुम ही मुझे बादशाह कहते हो। और यीशु मसीह बादशाह था, बल्कि वो बादशाहों का बादशाह था। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाने से हमें सिर्फ नजात नहीं मिलती, बल्कि हमें बादशाही भी मिलती है। हालेलुया। वो सिर्फ हमें जिंदगी नहीं देता है, वो सिर्फ हमें नजात नहीं देता है, वो सिर्फ हमें गुनाहों से मखलसी नहीं देता है, वो सिर्फ हमारी बीमारियों से हमें आजाद नहीं करता है, बल्कि वो अपने साथ हमें तख्त पर भी बिठाता है, वो हमें बादशाही भी अता करता है। और जब वो ये कहता है कि वो बादशाहों का बादशाह है, तो इसका क्या मतलब है? हम छोटे बादशाह हैं और वो बड़ा बादशाह है। इबलीस बादशाह नहीं है, इबलीस बदी की अरमाएं बादशाहत नहीं करती हैं। हाँ, वो तारीकी की कुव्वतें हैं, वो तारीकी के ऊपर हुक्मरान है। लेकिन जब यीशु मसीह ये कहते हैं कि वो बादशाहों का बादशाह है, तो इसका मतलब है कि उसके बेटे बेटियां भी बादशाह हैं। हालेलुया। उनके पास बादशाही है, उनके पास सल्तनत है, उनके पास इख्तियार है, और हम खुदा बाप के शहजादे और शहजादियां हैं। हालेलुया।
हम क्या हैं? हम खुदा बाप के शहजादे और शहजादियां हैं। एक दूसरे की तरफ देख के कहें कि हम खुदा बाप के शहजादे और शहजादियां हैं। कबो एक दूसरे से हाथ मिलाकर कहें हम खुदा बाप के बेटे और बेटियां हैं, हम यीशु के शहजादे हैं, हम यीशु की शहजादियां हैं। ए भैणा हाथ ही नहीं मिलान दी, क्यों है? करंट मिले पर पैंदा। एक दूसरे से हाथ मिलाएं, एक दूसरे से हाथ मिलाएं और कहें आप खुदा के बेटे बेटियां हैं, आप खुदा की शहजादियां हैं, आप बादशाह के बच्चे हैं। हालेलुया। और जब आप बादशाह के बच्चे हैं तो इसका क्या मतलब है? आपके पास अथॉरिटी है, आपके पास इख्तियार है। इब्लीस आपसे भागता है जब हालात आपके खिलाफ हो जाएं, जब तारीकी की कुव्वतें आपके ऊपर हमला करना चाहें। याद रखें, खुदावंद यीशु मसीह आपका बादशाह है, वो आपके लिए लड़ता है, वो आपकी तरफ से होकर जंग करता है। जंग जिन्ना दी लड़दा यहोवा, ओ जंग कदी नहीं हार दे। हालेलुया। खुदा के फरिश्ते आपकी तरफ से जंग लड़ते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि हमारी सुलह बादशाहों के बादशाह के साथ हो, हमारा राबता बादशाहों के बादशाह के साथ हो, हमारा कनेक्शन यीशु बादशाह के साथ हो, फिर हम फतह पाएंगे, बल्कि फतह से बढ़कर गलबा पाएंगे। हालेलुया। खुदा हमारे साथ है और वो हमेशा वो हमेशा फातेह है, और हम उसके बेटे बेटियां, हम उसके शहजादे शहजादियां। इसलिए हमने दलेर बनना है, हमने कमजोर नहीं बनना, बल्कि हमने क्या बनना है? हमने दलेर बनना है, हमने बुज़दिल नहीं बनना, हमने हालात का सामना करना है, हमने इब्लीस की आंखों में आंखें डालकर उसका मुकाबला करना है। और कलाम में क्या लिखा है? तुम इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। हालेलुया। लेकिन मुकाबला करने से पहले क्या लिखा है? बस खुदा के ताबे हो जाओ। जब ताबे हो जाएंगे, जब फर्मा बरदार हो जाएंगे, जब उसकी पैरवी करेंगे, जब उसकी आवाज सुनेंगे, जब उसके कदमों से लिपटे रहेंगे, जब उसकी हजूरी में रहेंगे, जब पाकीज़गी में रहेंगे, जब कलाम में रहेंगे, तब इब्लीस हमसे भागेगा। हालेलुया। फिर बीमारियां भागेंगी, फिर मौत भागेगी, फिर मायूसियां भागेंगी, और फिर हालात बदलना शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। आइए हम सब खड़े हो जाएं और बादशाहों के बादशाह के लिए शुक्रगुजारी करें, उस बादशाह की तारीफ करें जो अज़ली अबदी बादशाह है, जिसकी बादशाही का कोई इख्तिताम नहीं है। आइए सब खड़े हो जाएं, बहनों खड़े हो जाएं और आंखें बंद करें। पास्टर डैनियल जॉन की तरफ से आप सबकी सलामती हो। हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं कि आप पास्टर डैनियल जॉन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट्स करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। सो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, गुजारिश करते हैं कि इसी तरह से इस चैनल को सपोर्ट करते रहें, ताकि इस ज़मीन पर हम खुदा की बादशाही को ला सकें और मसीह के लिए रूहें जीत सकें। सो रिक्वेस्ट है, ज़रूर शेयर करें ताकि खुदा के नाम को जलाल मिल सके। गॉड ब्लेस यू।